Hello and welcome to our special episode of Mind Matters. I am your host Mr. T. Kumar Malik, disease educator at KinsCare. As we know, the World Health Organization is going to observe World Mental Health Day on 10th October. Is an opportunity for the people and the communities to unite behind the theme mental health is a universal human right, which is to promote knowledge, raise awareness and drive actions that promote and protect everyone's mental health as a universal human right. So on this behalf, today we are joined by our esteemed guest Dr. Priyanka Singhal, a renowned consultant neuropsychiatrist. We couldn't think of a better way to mark the World Mental Health Day 2023. Welcome, ma'am. Thank you so much for having me. So, ma'am, today we have a list of most asked questions about brain health, and I know our listeners are very eager to hear your insights. So, let's start. So, ma'am, what inspired you to specialize in neuropsychiatry? I had no knowledge about psychiatry initially, and I was never interested in psychiatry. But then I happened to get into a job in the Department of Psychiatry in North Bengal Medical College. And for a doctor, the best motivation would be, I think, contentment that gives us when a patient recovers completely from his or her illness. So during my phase of house staff shift that I did in psychiatry, I realized that with the help of few medicines, I could treat a patient completely. Like, I would like to give you an example. There was a patient of schizophrenia. She was in a very bad state when she had come to us. She had not taken bath for many weeks. She was completely unhygienic, unclean. She was not taking care of her household. She was not taking care of her child. Her husband was crying in front of us as to the entire family was disrupted. And she was scared. She used to confine herself in a single room for months and days. So I saw that after giving her two medicines, I just gave her two medicines. After consultation with my seniors and my professors, I called her after a month. And you won't believe, after a month, that lady was completely fine. She was completely cured. She was properly dressed. She was speaking properly, she was communicating well, she was taking care of her household. Her husband was very happy, the society around was happy. Because during that time, the society itself, the neighborhood itself, they were throwing remarks on the patient and they were threatening them to leave the neighborhood because that was creating a ruckus in the neighborhood because of her symptoms, right? She used to shriek, she used to shout, she used to wander around, all those symptoms used to happen. So after a month, just with the help of two medicine, we could change the life of that person. In turn, we could change the life of the family and the society as a whole. So that inspired me, that motivated me to take up psychiatry. And here I am. That's really great, ma'am. So, ma'am, is there any genetically linked with mental health? So, how do genetics influence mental health and brain health, ma'am? See, everything is about genetics. The way we behave, the way we think, the way our body is, the way we look, everything is about genetics. So brain function and mental health, everything is determined by genetics. The way we behave, the way we think, the way we look at things, all these things are determined by certain neurochemicals in the brain, certain neural circuits, and there are certain neural areas, as in the brain areas, the chemicals and the structures. All these, the proper functioning of these structures and areas is determined by genetics. If your genetic makeup is fine, everything will be fine. If there is any disruption in the genetic makeup, there will be disruption in the neural network, in the neural structures and the neural chemicals. As a result of which, there are changes in the behavior or thinking pattern of a person. Psychiatry is all about how a person thinks, how a person behaves, how a person feels. All these are determined by brain chemicals, structures, areas, networks. This in turn is determined by the genetics. So if there is any problem in the genetics, all these will, there will be a problem in these circuits, resulting in change in behavior and therefore resulting in psychiatric disorders. We do not have any control over the genetics, right? If there is any problem, if anyone is suffering from any psychiatric disorders for that matter, it is not under their control. Patients or people who have genetic tendency to develop psychiatric disorders, only these people, they develop psychiatric disorders. So if someone is saying, अरे यार तेरे को डिप्रेशन हो गया, तू कमज़ोर है, that is not the case. उसके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़. हम तो अपना जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, हमें जो मिला है मिला है.
वो जेनेटिक्स की वजह से हमारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो रही हैं. सो नेक्स्ट टाइम इफ समबडी इफ सफर्स फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. उनके अंदर है वो चीज़, उनको हो गया, आप ट्रीटमेंट कराओ, ख़त्म. तो उस चीज़ को लेके आई थिंक वो जेनेटिक्स क्यों है, कैसा है, बिकॉज हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. वी शुडंट थिंक मच इनटू इट. मैम जेनेटिकली अगर बात करते हैं तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो बाय बर्थ किसी को इस तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं या फिर बाद में बाय बर्थ उनमें टेंडेंसी है, मतलब उनका टेंडेंसी है, प्रोपेंसिटी है कि उनको होगा. अभी जिनको ये टेंडेंसी है उनके लाइफ में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब कुछ स्ट्रेस आ गया बहुत ज़्यादा. समझ लो कि किसी बच्चे की ज़िंदगी शुरुआत से लेके बहुत कठिन गई है, चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ रही हैं, सिंगल पेरेंट थे या फिर बहुत वायलेंस हुआ या फिर पॉवर्टी में जी रहे हैं या कुछ तरह की जो भी उस बच्चे के लिए एक नॉर्मल कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम नहीं दे पाए हैं अपब्रिंगिंग के लिए. तो ऐसे बच्चे में अगर जेनेटिक टेंडेंसी है प्लस ऐसे इन्वायरमेंट में अगर वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं. तो ऐसा नहीं कि बाई बर्थ उसको होगा, बच्चों में ऐसा सच साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं. बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं लाइफ में, वो सारी उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है. ऑलरेडी टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आके हिट करते हैं, बाद में जाके एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम का रूप निकल के आता है. सो दिस इज़ अ थिंग. ओके मैम, जहाँ पे मेंटल हेल्थ का बात हो वहाँ पे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है. मैम एज ए न्यूरो साइकेट्रिस्ट, कैन यू शेयर सम स्ट्रैटेजीज टू डील विद दिस स्ट्रेस मैम? See, everyone is facing stress. Everyone is going through stress. So, the first thing would be to acknowledge कि हाँ भाई लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है. बहुत लोग उसको भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं. बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ मेरे को तकलीफ हो रही है, चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा सिगरेट स्मोक कर लेते हैं, थोड़ा ईजन अप हो जाएगा. वो चीज़ नहीं करके अगर हम एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई मुझे इस कारण से स्ट्रेस हो रहा है, मैं अभी तकलीफ में हूँ और इसको मैं हैंडल कैसे करूँ, तो फिर आधी टेंशन, आधा स्ट्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है. तो फर्स्ट पार्ट वुड बी कि टू अंडरस्टैंड, टू एनालाइज कि ओके आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, हाउ शुड आई लेसन इट. दैट इज़ व्हाट वन थिंग. सेकेंड वुड बी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, एज इन कोई एक स्ट्रेस आपके लाइफ में है जिसका सोल्यूशन है. जैसे मेरे सर में दर्द हुआ तो मुझे पता है पैर खाने से मैं ठीक हो जाऊँगी, तो मैंने खा लिया, ठीक हो गया. एक हो रहा है कि मेरे को सर में दर्द है लेकिन ये दर्द का कारण ब्रेन ट्यूमर है. ओके इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो जब इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, इसके बारे में सोच के मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा. आई हैव टू डील विद द इमोशन जो इसके साथ आ रहा है. आई मीन आई हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, आई हैव टू मूव ऑन एंड डील विद द इमोशन. जो स्ट्रेस मेरे को हो रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आउट, राइट. तो चीज़ों को इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास सोल्यूशन है, इफ आई कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, लेट मी ट्राई एंड डू दैट. If there is no solution, fine, I'll keep on moving and learn to deal with it. That is one thing. So first is acknowledging the stress, second would be the coping strategy, and third would be lifestyle modification. Lifestyle modification में like दिन भर में हम जो भी चीज़ें करते हैं उसमें एक अगर रूटीन या एक हिसाब से अगर हम चले तो काफ़ी चीज़ें मेंटल हेल्थ को लेके ईजन अप हो जाएंगी. एज इन अगर हम सही टाइम पे एक्सरसाइज वगैरह करें, सोना, खाना पीना और मेडिटेशन अगर करें तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी. जैसे आजकल की जो लाइफ है, इट्स वेरी फास्ट मूविंग, सो पीपल आर नॉट टेकिंग टाइम टू टेक रेस्ट. दे आर आफ्टर देयर जॉब, मनी, वॉट एवर इट इज़. एक होता है ना कि थोड़ा स्टेप बैक लिया, रिलैक्स किया, घर पे चिल किया, कुछ नहीं करने में भी जो सुकून है वो महसूस नहीं करते हैं लोग. हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना है, वो नहीं करके अगर संडे ऐसा है कि नहीं मैं काम करूँगा ही नहीं, मैं फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं, मैं आराम से बस चिल मारूंगा, मैं कुछ भी नहीं करके वो खुशी वाला एहसास करूंगा, तो वहाँ पे एवरी वीक अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ब्रेन डिटॉक्स हो जाता है, हम लेस स्ट्रेस फील करते हैं. वहीं पे अगर आप नहीं करते तो वो पाइलअप होते रहता है और थोड़े दिन बाद आपका बर्नआउट निकलता है, आप फिर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर आप वापस से वो नॉर्मल में आने को आपको बहुत समय लग जाता है. इससे अच्छा है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को ईजन अप करें. ये एक चीज़. दूसरी चीज़ हो गई, पहले छोटे थे तब आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते थे, अभी उसका नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. जब भी हमें टाइम मिलता है वी आर ऑन टू आवर फोन्स, रील्स देख लिया, इंस्टा कर लिया, वही हमारे लिए टाइम पास है, वही हमारे लिए एंटरटेनमेंट है. बट एक्चुअली इट इज़ क्लाउडिंग योर ब्रेन, इट इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग. हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, उसी में घुसे हुए हैं, कुछ बेनिफिट ऐड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो ब्रेन या मेंटल हेल्थ को और डिक्लाइन कर रहा है. सो बेस्ट वुड बी कि हम थोड़ा मूव करें, मूवमेंट करें बॉडी का, तो वो
आउटडोर एक्टिविटीज़ में, किसी भी फॉर्म ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ में आई फील कि एवरी सिंगल डे अगर आप कुछ पार्टिसिपेट करें तो डैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और जब आप घर पे रहें, घर पे रहने से आप देखोगे सब अलग अलग फैमिली मेम्बर्स मोबाइल में ही लगे हुए हैं, ऑलवेज या टीवी या मोबाइल। सो आई थिंक तब अगर कोई इंडोर एक्टिविटी, चेस या लूडो, वॉट एवर इट इज़, जहाँ पे एक फैमिली का पार्टिसिपेशन हो, इंटरेक्शन हो, वो अगर किया जाए तो काफ़ी हल्का महसूस होगा, अच्छा लगेगा, फील गुड वाली बात आएगी। तो दैट इज बेसिकली जो इसमें जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसे इस चीज़ को डील करेगा। हाँ, मुझे पता है कि यार ऐसे करने से सही रहेगा, यस, तो करना चाहिए। लेकिन नहीं, मोबाइल देख रहा है मेरे को, मुझे मोबाइल चलाने का, मुझे पता है मैं 4 घंटे से चला रहा हूँ, मैंने मूवी देख ली, अब मैं इंस्टाग्राम देखूंगा, अब मैं फेसबुक करूँगा। सो ये जानने के बावजूद भी जो कर रही है एडिक्शन की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक if you have the idea, if you can analyze कि नहीं this thing is right, this thing is wrong, I shouldn't do it, उस स्टेट में कर लेना चाहिए, ना कि जब करोगे तब तक समय निकल चुका है और तब हमारे पास आने पड़ जाएगा। तो वो नहीं होने से पहले आप ये सब स्ट्रैटेजीज अगर करोगे तो आई थिंक हमारा लोड भी कम हो जाएगा, पेशेंट को भी हमारे पास आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर ऐसा शुरुआत से ही किया जाए तो। बिल्कुल मैम जी। आर देयर एनी अर्ली साइन ऑफ साइकेट्रिक कंडीशंस मैम? देयर आर। सो देर आर पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन के साइंस क्या होते हैं? जैसे अगर मैं आज डिप्रेशन से सफ़र कर रही हूँ तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आएंगे? मुझे पहले जितनी खुशी मिलती थी उतनी नहीं मिलती है। पहले मुझे काम पे आना अच्छा लगता था, अब मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं काम पे जाऊँ। मुझे पहले एनर्जेटिक फील होता था, फट से जाती थी, फट से आती थी, अभी एकदम सुस्त फील होता है, बहुत मतलब लगता है बैठी रहूँ एक जगह पे, उठूँ नहीं, जाऊँ नहीं कहीं पे। या फिर पहले मुझे एक इंटरेस्ट आता था कि चलो आज मैं थोड़ा सा घूमने जाऊँगी, आज मैं थोड़ा शॉपिंग करने जाऊँगी, लेकिन मन नहीं कर रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं कि यार क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मैं जो कर रही हूँ अच्छा, मतलब खुद पे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। एम आई यूज़फुल, एम आई वर्थफुल, वैसी वाली चीज़ें आ जाती है दिमाग में। एंड एट द सेम टाइम खाने पीने का मन नहीं करना, रात को ठीक से नींद नहीं आना, नींद डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी जब चीज़ें आप रियलाइज़ करो कि मेरे अंदर काफ़ी दिनों से, इट्स नॉट कि एक दो दिन के लिए स्ट्रेस में जब रहता है कोई, किसी के साथ भी हो सकता है, बट ये अगर 2 वीक्स से ज़्यादा किसी के साथ हो रहा है, कंटिन्यूअम में चल ही रहा है, देन वन शुड अंडरस्टैंड कि नो समथिंग इज़ रॉन्ग। स्पेशली जहाँ पे जो काम इंसान कर रहा है वो काम अगर अफेक्टेड हो रहा है, मतलब अपना काम अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कोई भी काम हो सकता है, मैं चेंबर करती हूँ, पेशेंट देखती हूँ, वो काम हो सकता है, कोई हाउसवाइफ अपना घर संभाल सकती है, वो काम हो सकता है, कोई ऑफिस जाता है, वही काम हो सकता है। तो कोई भी काम में दिख रहा है कि मेरे मेंटल हेल्थ की वजह से या मेरे सोचने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू गिव सो मच एनर्जी और मोटिवेशन इनटू वर्क, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ अबाउट डिप्रेशन। ये डिप्रेशन के साइंस। और ये एक तो खुद को भी रियलाइज़ करना चाहिए, दूसरा हो गया जो कलीग्स हैं मेरे, कि यार ये तो पहले जितना हंस नहीं रही है, पहले जितना बोल नहीं रही है, थोड़ी सी लो रहती है, ये 1-2 दिन की बात और है, बट ये कंटिन्यू में चले ही जा रहा है, चली जा रही है। तो दैट अदर पर्सन शुड टेक सम स्टेप इन ऑर्डर टू हेल्प दैट पर्सन। वन। दूसरी चीज़ होगी सिजोफ्रेनिया के केसेस में। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे पेशेंट का सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, समझने का तरीका चेंज हो जाता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मुझे अचानक से लगेगा कि आप जो इधर बैठे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपका कोई इंटेंशन है, आप शायद मुझे हर्ट करने की कोशिश करें या हार्म करने की कोशिश, जबकि आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, शायद आपने पीछे कोई किसी को बिठा के रखा है, मैं निकलूंगी वो मुझे गोली मार देगा। तो एक फियर, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है, बट आउट ऑफ द ब्लू मेरे दिमाग में ऐसा आया। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग सकता है बाहर मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट को वैसा एहसास होता है, उसको रियल में सुनाई देता है बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस इन द ब्रेन जो मैंने बताया। तो उसको लगेगा कि कान में आवाज़ें आ रही हैं, उसको सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई देगा। मैं बोल रही देखो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं मैं बात कर रहा है, बट मुझे सुनाई दे रहा है। और फिर मैं उसको जवाब भी दे रही हूँ कि तुम मेरे बात कर रहे हो, ठीक है मैं देख लूँगी तुमको, बोला नहीं मैं तुमको देख लूँगा, तुम बाहर आओ मैं तुमको उड़ा दूँगा। तो मैं उस डर से बाहर भी नहीं निकलूँगी। तो ये जो मेरा सोचने का तरीका है, इसमें जो चेंज आया है, मैंने जो सुना उसको जो मैंने समझा कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये मुझे रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये मुझे रियल लगेगा।
कि रियलिटी में ऐसा ही है सिचुएशन, तो मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो घर वाले हैं, वो समझें कि यार इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये तो ऐसा क्यों बात कर रहा है, अकेले में बात कर रहा है, इधर उधर देख रहा है कि कहाँ से आवाज़ें आ रही है। पहले घर से निकलता था, अब घर से नहीं निकल रहा है, दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके रख रहा है। पहले नहाने जाता था, अब नहाने ही नहीं जाते, 1 हफ्ता हो गया नहाने नहीं गया, कपड़े चेंज नहीं कर रहा, खाना हमेशा डर में एक कोने में पड़ा रहता है। सो ये सारी जो वियर्ड चीज़ें जो हमें लगे कि ये क्या कर रहा है, ये अब नॉर्मल कोई भूत प्रेत का साया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डोपामीन बोल के केमिकल हमारे ब्रेन में बढ़ गया है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। वो डोपामीन क्यों बढ़ गया है? जेनेटिक टेंडेंसी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, बढ़ गया। हम एक दवाई देंगे, जस्ट एक दवाई उसको दिया, ठीक हो जाएगा पेशेंट। ऑब्वियसली अर्ली स्टेज में पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो लोग काफ़ी सालों बाद आते हैं उनमें ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली साइंस में ये होगा कि डिप्रेशन के चीज़ में हमारा मूड अफेक्टेड हो जाता है, सिजोफ्रेनिया, ये सब, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर में या एंजाइटी, ये सब चीज़ में मूड, थॉट, परसेप्शन, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे हम रहते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कैसे हम फील करते हैं, ये सारी चीज़ में परिवर्तन आता है। तो या तो आप खुद समझो या आपके अगल बगल वाले समझेंगे, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स देख के। इसी बीच एक क्वेश्चन आ रहा था मैम मेरे दिमाग में कि हम बच्चों में मानसिक हेल्थ को, स्वास्थ्य को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? Parents are the ones who spend maximum time with their children. So it is dependent on the parents कि कैसे हम उनमें मेंटल हेल्थ ठीक रखें या उसको और ज़्यादा फॉस्टर करें। So एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ इमोशनल सपोर्ट। So a parent should be there to provide that emotional support to their children. They should also spend maximum time with them, right? So एक होता है ना कि बच्चा कोई स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम में है, किसको जाके बोले, तो वो पेरेंट अगर उनको वो स्पेस एंड टाइम दे, बच्चा अगर फील फ्री करे कि यार मैं अपनी मम्मी या पापा से ये शेयर कर सकता हूँ, मैंने कुछ गलती भी अगर करी है तो ये है मेरे को संभालने के लिए, और अगर उनको ये लगे मैंने कुछ गलती करी, ये तो मेरे को मारेंगे, दोनों मेरे को डांटेंगे, मैं बोल नहीं सकता, और उसने अपने अंदर ही अंदर रख लिया वो चीज़, दोनों में डिफरेंस है। तो जो फील फ्री करके बोल पा रहा है चीज़ें, जो आराम से अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पा रहा है, पेरेंट्स वो स्पेस दे रहे हैं उसको, उसका मेंटल हेल्थ बेटर होगा। ना कि जिसका जो बोल ही नहीं पा रहा है डर के मारे, उसके अंदर वो चीज़ें दब गई, वो जितनी बातें बोलना चाह रहा है, स्कूल में मेरे साथ इसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसने मेरे को ऐसे करके तकलीफ दी, मैं बोल नहीं पा रहा ये डर से कि यार वो मेरे को डांटेंगे, मैंने कहीं पे किसी को झूठ बोल दिया, कहीं से कुछ सामान उठा के लेके आ गया मैं, तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मैं बोल दूंगा, मैंने गलती करी है, ये मुझे डांटेंगे। तो वो चीज़ अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ईजन अप करें और उनकी बातों को समझ के उनको थोड़ा हेल्प करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर हम इनकरेज करें कि बेटा तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताओ, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, बात करो मेरे से, तुमको मेरे वजह से ये तकलीफ हो रही है, बात करो मेरे से, ये स्पेस अगर हम दें तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप बच्चे के सामने कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके सामने, आप अपने इन-लॉज के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ बच्चा समझता है। आपने उसको बोला बेटा ये बात मत बोलना पापा को, ये झूठ बात है, ये बात मत बोलना, और आप जाके खुद ही वो झूठ बोल रहे हो, वो पकड़ लेगा, नेक्स्ट टाइम से सेम चीज़ वही करेगा। अदर थिंग इज़, समझ लीजिए उसका फादर जो है वो अल्कोहल लेके घर पे आ रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, वो सीख रहा है, मेरे पापा जिनको मैं लुकअप टू कर रहा हूँ वो अल्कोहल लेके आ रहे हैं, वो स्मोक कर रहे हैं, वो सीख रहा है। अगेन उस डेवलपमेंटल स्टेज में उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, कन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन हो गया या डिवोर्स हो गया, वो चीज़ें उसके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, ये नहीं रहे तो ऑब्वियसली बच्चे का मेंटल हेल्थ बेटर होता है। अगर हम जो कंडीशंस हैं जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उसको और अगर बेटर बना पाएँ, कैसे बेटर बना पाएँ, इफ़ वी आर इमोशनली अवेलेबल टू द चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चले, वो हमसे आके ओपनली डिस्कस कर सके, हम उसको वो स्पेस भी दे रहे हैं, वो टाइम भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आया मेरे पास कुछ बोलने के लिए, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपना मोबाइल देख रही हूँ कि हाँ ठीक है मैं सुनो यार, कोई बात नहीं, मत टेंशन लो, तुम करो पढ़ाई करो, नहीं, उसको वो स्पेस चाहिए, उसको वो टाइम चाहिए समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए। वो टाइम एक पेरेंट ही दे पाएगा अपने बच्चों को। ये चीज़ हो गई। दूसरा, स्कूल में अगर हम टीचर्स को एजुकेट करें कि बच्चे में क्या क्या मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा कैसे स्ट्रेस के साथ डील करे नहीं करे, स्कूल में कोई बुलिंग हो रही है या पढ़ाई को लेके कोई इशू हो रहा है, तो टीचर्स उस चीज़ को बच्चों के साथ मिलकर कैसे एड्रेस करें, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट लेवल्स पे अगर करें तो आई थिंक हम बहुत सही तरीके से मेंटल हेल्थ
को इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों में। एट द सेम टाइम उनको एजुकेट करें कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, डिप्रेशन एनजाइटी के लक्षण क्या होते हैं, अगर तुम में है तो तुम मुझे आके बताओ। एट द सेम टाइम अगर हम उसको बताएं एडिक्शन के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, एडिक्शन क्यों नहीं करना चाहिए, फलाना अगर कर रहा है, मेरा कलीग या मेरा बैचमेट कर रहा है तो मुझे भी करने का मन करेगा, तो वहाँ पे उनको एजुकेट करना है कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी चाहिए हमें, क्यों ऐसी चीज़ों में हमें नहीं जानी चाहिए। तो ये सारी एजुकेशन, सारी नॉलेज एज वेल एज इमोशनल नीड जो बच्चों की होती है वो हमें फुलफिल करनी चाहिए। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। एंड यहाँ पे और एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये सब करने के चक्कर में बहुत बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स का खुद का मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो आपको भी अपना मेंटल हेल्थ सही रखना पड़ेगा, आपको भी सही तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य के पीछे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, जो भी स्ट्रेसर्स, कोपिंग स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस किए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग ही टेक केयर कर रहे हैं अपने बच्चों का, तो वो लोग सही नहीं रहेंगे तो बच्चों का टेक केयर कौन करेगा? Exactly. तो आप अपने बच्चों का भी मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए और खुद का भी। Thank you, ma'am. Moving forward, how can individuals support people dealing with mental health challenges? Okay, so there are many people who suffer from psychiatric disorders. Almost 10% of the Indian population is suffering from psychiatric disorders. First and foremost thing, अगर से मेरा फ्रेंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं जज ना करूं। मतलब हम ये सोचते हैं अरे यार इसको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी है, ये मेंटली वीक है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज प्योरली जेनेटिक लाइन से आता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ की सृष्टि या फिर इट अराइजेस। तो अगर किसी में हो रहा है दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। ऐसा नहीं कि मैंने लेके आया वो चीज़, या मेरी पर्सनालिटी वीक है या मैं इमोशनली कमज़ोर हूँ बोल के मेरे को हो गया। बीमारी है, हो गई, उसको डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों में, बट देन इट इज़ नॉट अंडर माई कंट्रोल। तो सबसे पहला काम है कि मैं जज ना करूँ अपने फ्रेंड को, अपने घर वालों को कि यार तुमको डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गया या सिजोफ्रेनिया हो गया। मैं उसको डिजीज़ की तरह ही लूँगी और उसका इलाज करवाऊँगी। अगर मेरा कोई निकट का सफ़र कर रहा है देन आई विल टेक हिम टू द राइट डॉक्टर, अ साइकियाट्रिस्ट फॉर ट्रीटमेंट। सेकेंड वुड बी टू रीअश्योर देम कि नहीं, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा, दिस इज़ जस्ट अ फेज, इट विल पास, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ परमानेंट। कोई भी ये जो जितनी भी साइकियाट्रिक बीमारी है वो परमानेंट नहीं है। आप डिप्रेशन का देख लो, हम दवाई देते हैं, 1 महीने में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सिविरिटी और कितने दिन तक है वो फैक्टर्स रहते हैं, बट देन मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन केसेस जो होते हैं 2-3 महीने में हम ठीक दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। सो तब लगता है ना कि यार सब खत्म हो गया है और कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। वो जस्ट आपकी बीमारी आपको वैसा सोचवा रही है। आई मीन योर ब्रेन इज़ मेकिंग यू थिंक लाइक दैट, बट यू आर नॉट दैट इज़ योर इलनेस। ये हमें रियश्योर करना है एंड ऑब्वियसली विल सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड कुछ दिनों में वो चीज़ चली जाएगी। तो ऐसे करके हमें हेल्प करना है पेशेंट को। और अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है, उसको ईजन अप करना, उसको वो मौका देना है कि यार तुम बताओ, मैं हूँ। वी शुड बी गुड लिसनर्स इन सच केसेस सो दैट यू नो उस पर्सन को भी लगे कि हाँ दिस पर्सन इज़ देयर फॉर मी, हिल हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस। सो ये चीज़ें हम करें तो जो बोलने वाला है, जो सफ़र कर रहा है, उसको स्टिग्मा नहीं लगेगा, उसको शर्म नहीं आएगी इस चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि हमारे देश में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से सफ़र करना मतलब आप दुर्बल हो। Exactly. एक शर्म का एहसास होता है। मैं कैसे बोलूँ कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कैसे बोलूँ कि मेरे फादर या मेरे अंकल सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें शर्म आती है। तो इसको हम डिजीज़ की तरह नहीं ले रहे हैं, इसीलिए शर्म आती है। जैसे किडनी की डिजीज़ होती है, हार्ट की डिजीज़ होती है, वैसे ही ब्रेन की डिजीज़ होती है। ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, बोल के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं हुई है, ये तो एक था, आपको हो गया, आप ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाओगे। इसको हमें इसको इतने सिंपली देखना है। कॉम्प्लिकेटेड वे में अगर हम देखें तो पूरी सोसाइटी, पूरी फैमिली जो है वो ख़राब हो जाती है इस चक्कर में। तो या दैट इज़ इट। So finally we have come to the end of our session, ma'am. So in the honor of Mental Health Day 2023, Dr. Singhal, what message would you like to give to our listeners?
So this year's World Mental Health Day theme is mental health is a universal right. Yes, ma'am. So through this World Mental Health Day, we are trying to create awareness among people about mental health. We are trying to educate people about their right to acceptable, accessible and available quality mental health care. So there are many patients are suffering from psychiatric disorders all over India. Almost 10% of the population is suffering from psychiatric disorders, out of which 1% is suffering from severe mental health disorders. हम ये सब जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि ऑलमोस्ट 14 करोड़ लोग जो हैं वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। इनमें से 75 to 80% लोग ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे। दे आर नॉट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस कि ऐसा कुछ होता है, कि ये कोई मानसिक बीमारी है तो हम मतलब इनको हम मानसिक बीमारी की तरह देखते ही नहीं, तो हम जाएंगे किसके पास? Exactly. हम समझते हैं कि ये ऐसे ही इसका ब्रेन खराब हो गया है, जादू तो ना कुछ हो गया या वगैरह वगैरह, उसको वहीं तक हम रहते। तो जस्ट इमेजिन 75 to 80% लोग ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हैं। दिस इज अ ट्रीटमेंट गैप। एंड जो 20% हमारे पास आते हैं वो भी प्रॉपरली अपना मेडिसिन नहीं लेते। तो कितना बड़ा गैप ट्रीटमेंट में भी है और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट केयर में भी है। तो ये चीज़ अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि अगर आपको कोई भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया, बीट सिजोफ्रेनिया, बीट डिप्रेशन, बीट एंजाइटी डिसऑर्डर, बीट OCD, बीट एडिक्शन, कोई भी तरह का अगर एडिक्शन है, हमारे इंडिया में अल्कोहल यूजर्स जो हैं अभी 16 करोड़ हैं। 16 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूजिंग अल्कोहल। ब्राउन शुगर के जो यूजर्स हैं दोज आर अराउंड 2.3 करोड़। सो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू सब्सटेंसेस। 10% पॉपुलेशन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रही है, बट स्टिल दे आर नॉट सीइंग ट्रीटमेंट। सो थ्रू योर मीडियम आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन कि अगर आप लोग या आपके नियर एंड डियर वंस, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, प्लीज़ विजिट अ लोकल साइकियाट्रिस्ट। किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आपको नीमहैन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रांची जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लोकल साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, कुछ दवाइयों से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा और आपकी फैमिली सुधर जाएगी, आपकी सोसाइटी सुधर जाएगी। जो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा था, आइडल बैठा था, कोने में पड़ा हुआ था, डिप्रेस था, दिमाग खराब हो गया था, वो नॉर्मल आ जाएगा। इट विल बी बैक टू ट्रैक। वो अपना काम कर पाएगा, घर पे अपनी अर्निंग्स दे पाएगा प्रॉपरली, जैसे आपका इन्वायरमेंट, जैसे आपका घर चल रहा था, हाउस होल्ड चल रहा था, वापस से वैसा हो जाएगा। जस्ट कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से ऐसा संभव है। सो प्लीज़ किसी भी लोकल साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, ये मेरा मैसेज रहेगा आप सबके लिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी सुसाइड के बारे में। बहुत सारे केसेस होते हैं डिप्रेशन के या बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के, इन विच पीपल कमिट सुसाइड। हम बोलते हैं ना यार इसे सुसाइड क्यों कर लिया, इसकी लाइफ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसने सुसाइड किया था तब हमें लगा था यार ये तो सही था, एक्टर है, इतना बड़ा, इतना अच्छा कमा रहा था, मूवीज़ इसकी चल रही थी, क्यों किया इसने सुसाइड? मैं होता तो कभी नहीं करता, मेरी इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, मैं उसकी जगह पे होता तो मैं कभी नहीं करता। तो ये हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है सुसाइड में, जब इंसान के अंदर ये आता है ना कि यार मैं अब नहीं जीऊँगा, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना, अभी मैं ऐसे करके स्टेप लेके मैं मर जाऊँगा, ये सोच आना ही मतलब वो पर्सन बीमार है। नॉर्मल इंसान के अंदर ये सोच नहीं आ सकती। अगर किसी का ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो उसके अंदर ये सोच इम्पॉसिबल है आना। तो बहुत सारे मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में या साइकोटिक सिम्टम्स में हम जिस हिसाब से सोचते हैं, हमारा जो सही सोचने का तरीका है वो अफेक्टेड हो जाता है। एक डिसीजन मेकिंग होती है ना कि मुझे 2 कॉलेज मिल रहे हैं एडमिशन के लिए, मैं इस कॉलेज में जाऊँ कि उस कॉलेज में जाऊँ। मैं सोचूंगी, समझूंगी, प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करूँगी, फिर मैं डिसीजन लूँगी। जो सुसाइड वाले पेशेंट है, डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ये सोच खत्म हो जाती है। मतलब उनको नहीं समझ में आता ये डिसीजन लूँ कि ये करूँ, प्रॉब्लम आई है लाइफ में मैं कैसे सॉल्व करूँ। ये जो प्रॉपर थिंकिंग होती है हमारी वो चली जाती है। ये हम कोई चीज़ से मेजर नहीं कर सकते। ये खुद अपने सोचने के तरीके से हम समझ सकते हैं कि अरे मैं तो पहले जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तो पहले जैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर जाके ये सारी चिंताएँ आती हैं दिमाग में कि यार मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, आई फील एट पीस। तो ये सब चीज़ें हमें एड्रेस करनी ज़रूरी है। आज भी इंडिया में एवरी डे एज पर स्टडीज़ देयर आर 449 केसेस ऑफ सुसाइड पर डे 449 cases of suicide, and the number of attempts is 20 times higher.
मतलब 449 इंटू 20 अगर कर दो तो इतने लोग रोज अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो कमिट नहीं कर पा रहे डेली बेसिस पे इंडिया में। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब ये कुछ साल पहले का डाटा है, तो ये बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। तो हम कैसे एड्रेस करेंगे इसको? हम एड्रेस करेंगे अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रख के। हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, हम बात करेंगे उनसे कैसे क्या चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बस एक स्टेप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, हेल्प सीख करना है, नियर एंड डियर वंस को बताना है। अगर आप करें तो लाइफ आपकी कंप्लीट टर्न हो जाएगी एंड बेटर जिंदगी में आप जा पाओगे। मैम, जैसा कि आपने कहा कि हमें लोकल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए अगर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत परेशानी अगर है। तो मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता था कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी है और आप लोकल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सोसाइटी में आपको पागल करार कर दिया जाएगा जी। So, इससे भी हम बहुत तरीके से मतलब डील कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट कैसे डॉक्टर के पास पहुंचे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ। इसी के वजह से क्या है, ट्रीटमेंट गैप शुरू हो रहा है। तो होपफुली आपके ये प्रोग्राम के माध्यम से हम कुछ लोगों को रीच कर पाएंगे जिनकी ये परसेप्शन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर या साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में चेंज हो जाए। मैं इस चीज़ के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि ब्रेन भी तो हमारा बॉडी का एक पार्ट है। जैसे कि समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ हो गई है, अगर मुझे मेरी शुगर बढ़ी हुई मिली, मुझे पैनक्रियास की प्रॉब्लम है, इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे पता है अच्छा डायबिटीज़ हो गया, मुझे डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना, मैं ट्रीटमेंट कराऊँ। उसमें ना मुझे कोई शर्म ना कोई शंका, लोग देख रहे हैं, अच्छा भैया क्यों आए हो यहाँ पे, डायबिटीज़ पकड़ में आया, उसका इलाज करना, अच्छा ठीक है, चीनी कम खाना वगैरह वगैरह, ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, ये बोलेंगे हम अपने निकट वालों को। लेकिन आज मुझे अगर डिप्रेशन है, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि मुझे डिप्रेशन है। मैं शायद अपने घर वालों को ना बोले, ऐसे केसेस आते हैं जो घर वालों को भी नहीं बोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना तो दूर की बात है। ऐसा क्यों? वो पैनक्रियास की बीमारी है, ये ब्रेन की बीमारी है, वो भी तो हिस्सा है बॉडी के पार्ट का, बट इसको हम अलग तरीके से लेते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि एक अलग तरीके से देखा जाता था, क्योंकि तब ट्रीटमेंट नहीं था, तो हम थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखते थे, हम थोड़ा अलग इन्वायरमेंट में लेके जाके हॉस्पिटल में लेके जाके रख देते थे। बट अभी हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे हम देखें जो प्रॉब्लम हुई है ब्रेन में उसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन जैसे हम बाहर से देते हैं ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में आए, ब्रेन में वैसे ही कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो हम दवाई के माध्यम से उस केमिकल को बैलेंस में ले आते हैं, और कोई रोल नहीं है हमारा। एकदम कॉमन सा चीज़ है, कॉमन एकदम। और ऐसा भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार दवाई खाऊंगा तो ज़िंदगी भर लत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि यार मैडम दवाई देंगी, साइकियाट्रिस्ट दवाई देगा तो नींद की दवाई देगा, मैं दिन भर सोता रहूँगा और उसकी मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानबूझ के नींद की दवाई भर भर के देंगे और आप सोते रहेंगे, वैसा इलाज नहीं होता है। हाँ ऐसा होता है, शुरुआत में हम कुछ दिन के लिए देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। और ये दवाइयाँ जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीवन भर चलेगी। अगर कोई पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है मेरे पास तो उसकी दवाई कुछ कम दिनों के लिए चलेगी। अगर वही पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आता है मेरे पास, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेके आता है, तो लंबी दवाइयाँ चलेंगी। तो यही सिस्टम है। आप किसी भी बीमारी को पकड़ो, आप डायबिटीज़ पकड़ो, हाइपरटेंशन पकड़ो, उसमें दवाइयाँ लंबी चलती है, प्लस आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने बोला जाता है, बीट डाइट, बीट एक्सरसाइज, एवरीथिंग। सिमिलरली साइकियाट्रिक की जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें हम दवाई देते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने बोलते हैं। अगर आप जल्दी आते हैं, डिप्रेशन में 9 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, सिजोफ्रेनिया में 2 से 5 साल में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। लाइफ टाइम वाला कोई सीन नहीं है इसमें। और जितनी जल्दी आप केयर लोगे उतने जल्दी आप सही हो जाओगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करो, प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड मेडिटेशन, देखा गया है कि मेडिटेशन अगर हम करें, जो काम हमारी दवाइयाँ करती हैं सेम काम मेडिटेशन करता है, बट इन द लॉन्ग टर्म। अगर प्रॉपरली मेडिटेशन किया जाए तो जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं ब्रेन में वो मेडिटेशन भी करेक्ट कर सकता है। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हुआ मेडिटेशन किया और सब ठीक हो गया, वैसा नहीं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कि अब मेरे को डिप्रेशन हो गया, मैंने दवाई खाई, मैं ठीक हो गया, अभी नेक्स्ट मुझे नहीं हो, इसके लिए मैं प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड प्रॉपर डाइट ये अगर करूँ तो भविष्य में वापस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हम प्रॉपरली अगर अपने आप को सही रखें, सही तरीके से चलाएं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना दे के खुद को कैसे ठीक रखना है। हाँ मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, मुझे जाना चाहिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके सब सही रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल सजेशन।
इसीलिए आज का सेशन हमने रखा हुआ था सो डैट हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो फाइनली गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, कनेक्ट विद अदर्स जिनके साथ आपको उठना बैठना पसंद हो, टाइम स्पेंड करना पसंद हो, खुश रहें, एक्सरसाइज रेगुलरली करिए। रिमेंबर योर माइंड मैटर्स and taking care of it is a lifelong journey. Thank you so much for coming. Happy World Mental Health Day. Thank you.